So we'll be continuing with state legislature. That is, now we'll come to chapter number 3. That is the general provisions. Okay. So coming to Article 168. 168, that is Constitution of Legislatures in States. For every state there shall be a legislature which shall consist of the governor. And in the states of Andhra, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh, there will be 2 houses. So it is also mentioned that 2 houses will be there in the constitution. It is mentioned. Okay. When there are 2 houses of the legislature of the state, one shall be known as legislative council, the other will be legislative assembly, and when there is only one house, it shall be known as legislative assembly. Okay, fine. This is article 168. Now coming to 169. 169, abolition or creation of legislative councils in a state. Like abolition or creation का जो provisions है, it has been mentioned in 169. So here, Parliament may by law provide for the abolition of the legislative council of a state having such a council, or for the creation of such a council having no council, if the legislative assembly of the state passes a resolution to that effect by a majority of the total membership of the assembly and by a majority of not less than 2/3 of the members present and voting. So one is majority of total membership and also majority of 2/3 of present and voting. The legislative assembly has to pass a resolution to that effect. Okay, this is article 169. Okay, next. So we're done with article 168, 169. Now coming to another clause is there of 169. Any law referred to in clause 1, okay, just now we covered the clause 1, shall contain such provisions for the amendment of this constitution as may be necessary to give effect to the provisions of the law, and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions as the parliament may deem necessary. So it means the parliament will give effect by making provisions of abolition or creation, as the case may be. The parliament will give effects. Once the resolution comes from the state legislature, the parliament will give effect. It can be anything. Okay. Such supplemental, incidental and consequential provisions as the parliament may deem necessary. It all depends on the parliament to give effect by making some provisions about abolition or creation. That's it. Third clause, no such law as aforesaid, जो भी यहाँ पे लिखा गया है, shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purposes of article 368. Article 368 talks about amendment. जो भी ये parliament law लाएगा, ठीक है, it will be outside the ambit of article 368. Outside the ambit. So it means it will be done by simple majority. Outside the ambit, article 368 is anything you want to amend may be a special majority. Okay, but here it is outside the ambit. If you do this, it will be outside the ambit, so that will be simple majority. Okay, so again in clear terms, ये constitutional language में है, clear terms में अगर देखा जाए तो article 169 provides to the state having the second house the right to abolish the same, to the state having no second house the right to create one. The procedure is that legislative assembly of the state should pass a resolution. Should pass, so it is mandatory. So it has to pass a resolution, otherwise things cannot be done. So abolition and creation, देखो यूपीएससी में नॉर्मल लैंग्वेज में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं. दे विल ट्राई टू ट्विस्ट विद द लैंग्वेज, वोकेबुलरी के साथ ट्विस्ट करेंगे. तो यहाँ पे आपको छोटी मोटी चीज देखना पड़ता है. तो यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करना पड़ेगा कि ये चीज होने के लिए द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट शुड पास, ठीक है, should pass the resolution for the abolition or creation as the case may be by a majority of total member and not less than 2/3. दो टाइप के मेजोरिटीज हैं यहाँ पे. When such resolution has been passed, the parliament will give effect to it by making provisions. This statement, by making provision for the abolition or creation as the case may be. तो स्टेट असेंबली का बस काम है कि रिजोल्यूशन पास करना, देन इट गोज टू द पार्लियामेंट. सो द ओनस इज ऑन द पार्लियामेंट टू गिव इफेक्ट. ओके, एंड क्लॉज 3 जैसे कि बोला, ये सब चीज अभी भी मैंने बोला 368 के बाहर आएगा. ओके, 368 से बाहर मतलब सिंपल मेजोरिटी से होगा, बिकॉज द थिंग इज यू आर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? एंड 368 टॉक्स अबाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. हियर यू आर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बट यू आर डूइंग इट आउटसाइड द एम्बिट ऑफ 368.
That is simple majority, वही चीज लिखा है. It's not deemed to be an amendment of the constitution for the purpose of article 368 and it will be passed like an ordinary legislation, that is a simple majority. Okay, fine. Next, article 170. Article 170, that is composition of legislative assemblies, subject to the provisions of article 333. Now 333 talks about Anglo-Indians. We'll go to that when we reach there. We'll study about that. आर्टिकल 333 टॉक्स अबाउट गवर्नर एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है, उनका डिस्क्रिशन से नॉमिनेट कर सकता है. दैट इज आर्टिकल 333. विल टॉक अबाउट दैट लेटर व्हेन वी रीच देयर. सो सब्जेक्ट टू दैट प्रोविजन, द legislative assembly of each state shall consist of not more than 500 and not less than 60 members chosen by direct election from the territorial constituencies in the state. It shall not contain more than 500 and not less than 60 members chosen by the direct election from territorial constituency in the state. We'll come to that. For the purposes of clause 1, this is the clause 1. इसी चीज के लिए each state will be divided to territorial constituencies. Same thing जो भी हमने पार्लियामेंट में पढ़ा था लोकसभा के लिए, वही चीज सेम ही है यहाँ पे. आपको रिमेंबर करना है सेंसस किसका 2001 सेंसस है, किसका 1971 सेंसस है, आपको याद करना है. जैसे कि सिमिलर चीज है यहाँ पे भी सेम चीज है. Each state shall be divided into territorial constituencies in such manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allocated to it shall be, as far as practicable, be the same throughout the state. So that uniformity is maintained. ठीक है. पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगेन बोल रहा हूँ, द पॉपुलेशन ऑफ ईच, बहुत सारे स्टेट्स में, एक स्टेट में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगे, राइट. स्टेट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज. सो द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइडेड द नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू दैट, इट शुड बी सेम थ्रू आउट, बट द पॉइंट इज एज फार एज प्रैक्टिसेबल. ठीक है, तो इससे क्या मतलब है एज फार एज प्रैक्टिसेबल. तो ये जो स्टेटमेंट है इट हैज अ वेरी डीप मीनिंग. जितना प्रैक्टिसेबल में हो सकता है उतना करेंगे. तो यहां पे एक चीज है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इट शैल बी द सेम. यू हैव टू गो वर्ड बाय वर्ड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. एज फार एज प्रैक्टिसेबल सेम होना चाहिए. हम नॉर्मली लक्ष्मीकांत में क्या पढ़ते हैं, सेम होना चाहिए. बट अगर क्वेश्चन आएगा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टेटमेंट में वो डाल देंगे इट हैज टू बी एग्जैक्टली द सेम. एग्जैक्टली वर्ड अगर पुट कर देंगे इट विल बी रॉन्ग, बिकॉज द क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन पूछा गया है. इट इज नॉट एग्जैक्टली एट फार एज जितना प्रैक्टिस में हो सकता है हम उतना करेंगे, राइट. फाइन. इन दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन मीन्स the population as unascertained as the last preceding census of which the relevant figures have been published. और लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस कौन सा है, 2011 का है. ओके, विल कम टू दैट. यहाँ पे पॉपुलेशन जो है हम लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस के हिसाब से ही लेते हैं, लेकिन क्या चेंजेस हुआ है अभी पता चलेगा. प्रोवाइडेड दैट द रेफरेंस इन दिस एक्सप्लेनेशन टू द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस ऑफ व्हिच द रेलेवेंट फिगर्स हैव बीन पब्लिश्ड शैल until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published, the figures will be constituted as reference to 2001 census. ये अमेंडमेंट में आया है. 2002 में एक अमेंडमेंट हुआ था, उन्होंने बोल दिया कि अभी जब तक 2026 नहीं हो रहा है तो ये जो पॉपुलेशन है हम 2001 सेंसस के हिसाब से लेंगे. क्लियर. कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो ये जो डिवीजन हो रहा है, पॉपुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सीट, इट शुड बी एज फार एज पॉसिबल सेम. हियर दैट पॉपुलेशन विल कम फ्रॉम 2001 सेंसस, but this 2001 census was not initially mentioned in the constitution. It came from an amendment. Okay, because constitution में कोई नंबर नहीं लिखा गया, it's not, कोई ईयर नहीं लिखा गया, it's only last preceding census is the term mentioned in the constitution. So they changed it by amending this particular provision. ठीक है. ओके, यहां तक क्लियर हो गया सबका. फाइन. सो ये जो चेंज हुआ है ये 2003 87th अमेंडमेंट एक्ट से चेंज हुआ है. आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो चेंज हुआ है ये यहाँ से चेंज हुआ है. दैट इज द 87th Amendment Act of 2003. We know there was an amendment regarding that delimitation amendment हुआ था, तो यही हुआ था. वहां पे भी पढ़े थे हम, कहाँ पे, पार्लियामेंट के चैप्टर में भी पढ़े थे. सेम थिंग यहाँ पे भी है. ठीक है. ओके.
नेक्स्ट क्लॉज क्या बोल रहे हैं, अपॉन द कंप्लीशन ऑफ ईच सेंसस द टोटल, मतलब एक सेंसस के कंप्लीशन होने के बाद हर 10 साल में एक सेंसस होता है, राइट। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ईच सेंसस द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट and the division of each state into territorial constituency shall be readjusted by such authority and in such manner as the parliament may by law provide. Same चीज है। तो हर completion of each census के बाद, after the completion of each census, the total number of seats in the legislative assembly of each state में जितना भी seats हैं and डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, कितना होगा एक स्टेट में, कितना कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगे, इट विल बी रीएडजस्टेड बाय सच अथॉरिटी। ये अथॉरिटी कौन है, ये अथॉरिटी डीलिमिटेशन कमीशन है, ठीक है, डीलिमिटेशन कमीशन है। याद रखना, डीलिमिटेशन कमीशन एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है। द पावर हैज बीन गिवन टू द पार्लियामेंट हैज बॉट दिस कमीशन। और ये जो हमने अभी पढ़ा 87th अमेंडमेंट है कि डीलिमिटेशन कमीशन यहीं पे चेंज हुआ था, 2001 बनाया गया था। ओके फाइन। नेक्स्ट फिर क्या हुआ, प्रोवाइडेड दैट सच रीएडजस्टमेंट शैल नॉट अफेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली अंटिल द डिसोल्यूशन ऑफ द देन एग्जिस्टिंग असेंबली। Provided further that such readjustment shall take effect from such date as the president may by order specify। तो यहां पे किसका रूल आ रहा है, ये सब ऐड हुआ था बाद में, ठीक है, अमेंडमेंट से। ये जो रीएडजस्टमेंट हुआ, इट शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर स्पेसिफाई एंड अंटिल सच रीएडजस्टमेंट टेक्स इफेक्ट any election to the legislative assembly may be held on the basis of territorial constituencies existing before such readjustment। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑर्डर देगा तब से जाके ये चीज शुरू होगा, तब तक जैसा था वैसा चलेगा। ओके ओके, नाउ प्रोवाइडेड दैट, नेक्स्ट provided also that until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 has been published। तो ये भी उसी 87th अमेंडमेंट एक्ट में ये दो पॉइंट ऐड हुए हैं जो कि आज के डेट में यही चल रहा है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। जब तक 2026 नहीं हो, उसके बाद वाला सेंसस नहीं हो रहा है, इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू रीएडजस्ट the total number of seats in the legislative assembly of each state as readjusted on the basis of 1971 census. The division of such state into territorial constituency as may be readjusted on the basis of 2001। सेम थिंग है जो हमने पार्लियामेंट के लिए पढ़ा था, कोई चेंजेस नहीं है, उन्होंने सेम चीज दोनों के लिए रखा है। तो अब तक जब 2026 के बाद जो सेंसस नहीं हो रहा है तब तक यही चलेगा। ओके नेक्स्ट, ये सेम चीज लिखा है। नेक्स्ट कमिंग टू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ओके, the total number of members in the legislative council of a state having such a council shall not exceed 1/3 of the total number of members in the legislative assembly of that state। काउंसिल का जो मेंबर है 1/3 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, जितना भी 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। दिस क्वेश्चन हैज कम इन 2015 और 16, डायरेक्ट क्वेश्चन यही लाइन आया था। ओके, प्रोवाइडेड दैट द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट shall in no case be less than 40, ठीक है, until the parliament by law otherwise provides the composition of a legislative council of a shall be provided। Now here there is a trick, we know these are the composition, it is clearly mentioned, we know these are the composition, but यहाँ पे और एक चीज है। तो यहाँ से आपको क्या चीज सीखने को मिला, नया चीज, this it means parliament has a provision, it can provide for the composition of the legislative council of a state until parliament does, this one has to be followed। clear? तो पार्लियामेंट के पास एक है,
पार्लियामेंट किया नहीं है, दैट्स अ सेपरेट इशू, बट पार्लियामेंट कैन डू until parliament by law otherwise provides. The composition should be done on this. When we read Lakshminkant, we read only this. These are the composition, but we know the real thing. The real thing will only come when you read the constitution, article specific. ठीक है? Okay. So parliament has by law it has the authority to do. It can do composition of legislative council of a state. It may be shocking for you, but it is truth. ठीक है? Fine. Next. So अभी out of the total number of members of the legislative council of a state, ठीक है, डिवीजन हुआ है कितना कितना होना चाहिए टोटल कंपोजिशन का. अब देखो, as nearly as may be, अब यहाँ पे भी दिस इज द टर्म as nearly as may be. तो यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतना 1/3 ही होगा. What we study in our books, 1/3, 1/12 of this, rest for nominated by governor. All this stuff we study in our normal books. But that is the issue when we see a question we can't answer. तो वहीं पे वो ट्रिक हो जाता है. Because this is the basic constitution. As nearly as may be, 1/3 आएगा shall be elected by electorates consisting of the members of municipalities, district boards, such other local authorities in the state, as again as the parliament may by law specify. ठीक है? As nearly as may be, 1/12 shall be elected by electorates consisting of persons residing in the state who have been for at least 3 years graduates of any university in the territory of India. Again, outside territory अगर डाल देगा गलत हो जाएगा. Outside the territory से अगर तुम graduate करके आते हो, they can ask any type of question they can make. They can frame. You can make your own questions from here. Any person who has a 3-year graduate from outside from any university outside India also, they are also eligible to be a part of this electorate. No, it is wrong. In India, or have been at least 3 years in possession of qualifications prescribed by or under any law made by parliament as equivalent to that of a graduate of any university. ठीक है? Third, as nearly as possible, 1/12, again 1/12, 1/12 shall be elected by electorates consisting of persons who have been for at least 3 years engaged in teaching in such educational institutions within the state not lower in standard than that of a secondary school, as may be prescribed or by any under law made by the parliament. ठीक है? अब देखो ध्यान से, at least 3 years engaged in teaching in such educational institution within, this is the term. Again, they'll simply change this word, in the country. गलत हो जाएगा. You are talking about state. So here teaching within the state, okay, teaching has to be within the state. You have to be engaged in an institution within the state. But if you see here, graduate residing in the state who have been for at least 3 years graduate from university in the territory of India, this is within the state. This is the difference. Okay, fine. Next, as nearly as may be, 1/3 shall be elected by members of the legislative assembly. This is very common. 1/3 shall be elected from the legislative assembly. Assembly में जो जीत के गए हैं वहां से 1/3 select होगा from among the person who are not members of the assembly. ठीक है? The remainder shall be nominated by the governor. ठीक है? Now governor, as per clause 5. Clause 5 is literature, science, art, cooperative movement, social service में special knowledge होना चाहिए, practical experience होना चाहिए. You have to remember exactly the terms: literature, science, art, cooperative movement, social service. This cooperative movement is not in center, okay, because cooperative is a state list में आता है cooperatives. Fine. Now clause number 4. The members to be elected under clause A, B, C. ठीक है? Clause A, B and C. Okay? 1/12, 1/12 and 1/12.
of clause 3 shall be chosen in such territorial constituencies as may be prescribed by or under any law by the parliament, and the elections under all the clauses A, B, C, D of the said clause shall be held obviously with the system of proportional representation से होता है by means of single transferable vote. Okay. The members to be nominated by the governor, अभी पढ़ा हमने, must have special knowledge or practical experience in literature, science, art, cooperative movement and social service. Okay, ये आपको याद करना है. Next, तो सेम चीज यहाँ पे लिखा है. This is the terms which is mentioned in Lakshmikant. This language is mentioned in Lakshmikant. But अब लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो आपको क्लैरिटी मिलती है. ओके, ठीक है. सो वही चीज लिखा है. बट अंटिल द पार्लियामेंट लेजिस्लेट्स ऑन द मैटर, ये फॉलो किया जाएगा. इसीलिए अब हर जगह आपने लिखा है एज द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट. तो दिस सिस्टम ऑफ कंपोजिशन the council is not final. The final power of providing the compositional rests with the parliament. Parliament law बनाएगा, उस law के हिसाब से composition होगा. Next. Okay. So अगर counting करेंगे तो 5/6 of the total members shall be indirectly elected and 1/6 shall be nominated by the governor. ठीक है? Okay. Duration of state legislatures. Duration क्या है? Every legislative assembly of every state, unless sooner dissolved, shall continue for 5 years. Okay, fine. सबको पता है. From the date appointed from its first meeting, and no longer, and the expiration of the said period of 5 years shall operate as a dissolution of the assembly. ठीक है? Provided that the said period, लेकिन जब इमरजेंसी चल रही है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन. इमरजेंसी के बारे में हम दूसरे आर्टिकल्स में पढ़ेंगे. बी एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट. पार्लियामेंट एक्सटेंड करता है इमरजेंसी को फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 year एट ए टाइम एंड नॉट एक्सटेंडिंग इन एनी केस बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 months और द प्रोक्लेमेशन हैज सीज्ड टू ऑपरेट. ठीक है. द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट शैल नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन. लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसोल्यूशन नहीं होता है उनका, बट एज नियरली एज पॉसिबल. ठीक है, अगेन, बट एज नियरली एज पॉसिबल 1/3 of the members thereof shall retire as soon as may be on the expiration of every second year, in accordance with the provisions made in that behalf again by parliament by law. ठीक है. तो वर्ड बाय वर्ड आपको याद करना है. मतलब these are all prelim stuff. ये प्रीलिम्स के लिए आपको काम आ जाएगा, खास करके जो यूपी से प्रीलिम्स है. स्टेट प्रीलिम्स में भी आजकल डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. ओके, ये सब चीज वही चीज लिखा है. नाउ कमिंग टू 173, क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. वेरी फेमस एंड वेरी कॉमन, और तो सबको पता है क्वालिफिकेशन क्या होता है. अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूजन टू फिल ए सीट इन द स्टेट लेजिस्लेचर अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. ऑब्वियसली सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए. एंड मेक्स एंड सब्सक्राइब्स बिफोर सम पर्सन, सम authorized in that behalf by election commission. by election commission, यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में नहीं लिखा. इट्स बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. we are studying about state legislature, but here the authorization will be given by election commission. So by before some person authorized in that behalf by the election commission, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the third schedule. थर्ड शेड्यूल में जैसे फॉर्म लिखा है उस हिसाब से होगा. Okay, unless he is in the case of a seat of legislative assembly not less than 25 years. 25 years होना चाहिए असेंबली के लिए एंड 35 years होना चाहिए 30 years होना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए. एज का एक लिमिट है. ओके, बाकी और क्या है. तीसरा में है कि और एनी क्वालिफिकेशन अगर कोई पार्लियामेंट ने बनाया है तो वहां पे भी चल सकता है. and any possess any other such qualification as prescribed by that behalf by a law made by the parliament.
आरपी एक्ट वगैरह है। आरपी एक्ट तो इसके पार्लियामेंट ने एक आरपी एक्ट बनाया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 बना, 1951 दोनों। 1951 पे ये है, the RP Act has provided that a person shall not be elected either to the legislative assembly or to the council unless he is himself an elector or any legislative assembly constituency in that state. This point has come from an act, not from constitution. Unless he himself is an elector for any legislative assembly constituency in that, for any constituency in that state. ठीक है, तो सिटीजन होना चाहिए, ओथ सब्सक्राइब करेगा बिफोर एनी ऑथोराइज्ड पर्सन बाय द इलेक्शन कमीशन 25 years and this for 30 years and any other qualification prescribed by parliament. This is another qualification, elector. ठीक है, तो इलेक्टर का जो क्वालिफिकेशन इट हैज कम फ्रॉम आरपी एक्ट ऑफ 1951. ओके, नाउ कमिंग टू सेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट. सेम चीज है जो हम प्रेसिडेंट के चैप्टर में पढ़े थे. व्हाट यू कैन डू इज, मेरा जो प्रेसिडेंट का चैप्टर है, आप प्रेसिडेंट के चैप्टर के वीडियो देखोगे, फिर गवर्नर का देखोगे, आपको पूरा क्लैरिटी और सही से क्लैरिटी मिलेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस आर सेम. जहाँ पे डिफरेंस है आपको पता चल जाएगा. वहाँ पे भी जो सेशन था प्रोरोगेशन का, डिसोल्यूशन का, यहाँ पे भी सेम है. तो यहाँ पे गवर्नर शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो टाइम नहीं लिखा गया है, फ्रॉम टाइम टू टाइम समन द हाउस और ईच हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर टू मीट एट. कहाँ पे मीट करने के लिए बुलाएंगे, तो कोई जगह नहीं है यहाँ पे, देयर नो प्लेस इज मेंशन्ड. आप ये नहीं बोल सकते कि आपको विधानसभा में ही आना है. at any place at such time and place as he thinks fit. लास्ट बैच में हमने क्वेश्चन भी किया था इसके ऊपर. अगर कोविड हो गया तो उनके ऊपर ही वो कहीं पे भी बुला सकते हैं, एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट. ठीक है, बट 6 months, बट यहाँ पे 6 months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for the first sitting. मैक्सिमम गैप जो है 6 month का होना चाहिए. ठीक है, तो मैक्सिमम जो है 2 सेशन होना चाहिए, बट हमारा 3 सेशन होता है, बट मैक्सिमम 6 months होना चाहिए. ठीक है, द गवर्नर में फ्रॉम टाइम टू टाइम, देखो यहाँ पे 6 months एक्सप्लिसिटली भी नहीं लिखा गया है. सो एक्सप्लिसिटली 6 months नहीं लिखा गया है, उन्होंने बोला है, सॉरी 6 months लिखा गया है बिटवीन द फर्स्ट सिटिंग एंड द फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग के बीच में 6 महीने का होना चाहिए. लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा है कि 3 सेशन होना चाहिए. व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज 3 सेशन जो होता है हमारा, इट इज अ प्रेसिडेंट, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन में 2 भी हो सकता है, 6 महीने 6 महीने में. द गवर्नर में फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोरोग द हाउस और इधर हाउस, और डिसॉल्व कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, बिकॉज इधर हाउस को तो डिसॉल्व नहीं कर सकता, दे कैन ओनली डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली, बट प्रोरोग दोनों को कर सकता है. ओके, नेक्स्ट. ओके, ये जो आर्टिकल 174 है, यहाँ पे एक दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, एक डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में एक प्रेमखंडू केस है. द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द गवर्नर is under a duty to exercise his power under 174 only in his discretion after considering all facts and relevant matters in summoning or preponing the summoning of the house, and it is not for the court to examine such discretionary power as any such exercise would take the court to the political arena. कोई भी अगर ये जो आर्टिकल 174, इट्स अ वेरी डिबेटेबल आर्टिकल ऑल्सो. 174 जो आर्टिकल है बेसिकली ये क्या है, ये प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन का बात होती है. यहाँ पे गवर्नर का जो पावर है, तो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि ये जो पावर है वो तभी डिस्क्रिशन में काम कर सकते हैं जबकि उन्होंने हर कंडीशन को देखा है, ऑल फैक्ट्स रिलेवेंट मैटर्स इन समोनिंग और प्रीपोनिंग द समोनिंग ऑफ द हाउस. तो वो देख के करना जरूरी है. ओनली इन डिस्कशन आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट. नहीं तो बेसिकली ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आधार पे करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, 175. यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, केयरफुल रहना, सुनना अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बिकॉज ये हर साल न्यूज़ में रहता है. ओके,
राइट ऑफ गवर्नर, देखो दो प्रकार का एड्रेस होता है, ठीक है, एक होता है स्पेशल एड्रेस और एक होता है नॉर्मल एड्रेस। जैसे कि हमने प्रेसिडेंट के चैप्टर पे ऑलरेडी पढ़ रखा है, आर्टिकल 86 एंड आर्टिकल 87। आर्टिकल 87 प्रेसिडेंट का स्पेशल एड्रेस होता है, ओके। और स्पेशल एड्रेस हर साल बजट से पहले होता है, और नया सरकार व्हेन न्यू पार्टी न्यू इलेक्शंस हैपेंस आफ्टर द इलेक्शंस वो होता है, राइट। सेम चीज यहाँ पे भी है। अब दो चीज आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ऑलरेडी मैंने पिछले क्लास में बताया था। जो नॉर्मल राइट होता है, राइट ऑफ ए गवर्नर टू एड्रेस, सिंपली एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउस, यहाँ पे द गवर्नर में आप कुछ डिफिकल्ट एमसीक्यूज जब करोगे आपको ये सब क्वेश्चंस मिलेगा, नॉर्मल एमसीक्यूज में नहीं मिलेगा आपको। यू हैव टू फाइंड द डिफिकल्ट एमसीक्यूज, सिर्फ डिफिकल्ट एमसीक्यूज करोगे तभी जाके दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन गेट, और बहुत कम आपको मिलेगा डिफिकल्ट एमसीक्यूज, ओके। तो इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द गवर्नर टू एड्रेस, नॉर्मल एड्रेस की बात हो रही है। स्पेशल हो जाएगा इट इज मैंडेटरी, इट इज मैंडेटरी शैल, ठीक है। सो द गवर्नर मे एड्रेस द लेजिस्लेटिव असेंबली और इन केस ऑफ अ स्टेट हैविंग ए लेजिस्लेटिव काउंसिल आल्सो, और इधर हाउस, दोनों को, और बोथ हाउस असेंबल टुगेदर एंड मे फॉर दैट पर्पज रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ मेंबर्स। कोई भी पर्पज के लिए अगर लगेगा गवर्नर को बुलाना चाहिए, इट कैन डू, अटेंडेंस चाहिए आ जाओ, मे, ठीक है। द गवर्नर मे सेंड, सेकेंड क्लॉज क्या बोल रहा है, द गवर्नर मे सेंड मैसेजेस टू द हाउस, सेम चीज है जो प्रेसिडेंट के लिए पढ़ा था। द गवर्नर मे सेंड मैसेजेस टू द हाउस और हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, वेदर विथ रिस्पेक्ट टू ए बिल then pending in the legislature or otherwise, and a house to which any message is so sent shall with all convenient dispatch consider any matter required by the message to be taken into consideration। मतलब गवर्नर को अगर लगेगा कोई बिल पेंडिंग है, उसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर एनी कन्वीनियंट डिस्पैच करो, एनीथिंग एनीथिंग अगर लगेगा, इट मे सेंड मैसेजेस, ठीक है। नाउ कमिंग टू स्पेशल एड्रेस, जो कि प्रेसिडेंट के लिए इट वाज आर्टिकल 87, ओके। तो 87 जो स्पेशल एड्रेस है, इन दिस केस इट इज 176 एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शंस and at the commencement of first session of each year, the governor shall, so it is mandatory for the governor and the president to take a special address। नॉर्मल एड्रेस आएगा, डू नॉट थिंक अबाउट स्पेशल, अगर एड्रेस में स्पेशल आएगा देन ओनली इट इज टॉकिंग अबाउट स्पेशल एड्रेस, ओके। सो इट इज मैंडेटरी, सो स्पेशल एड्रेस इज मैंडेटरी, okay। So the governor shall address the legislative assembly or in case of a state having a council, both houses assembled together and inform the legislature of the causes of its summons, inform करेगा, इसीलिए this is the special address come। Provided provisions shall be made by rules, and ये सब provisions rules में है, इतना ही लिखा है आर्टिकल में। हमने पार्लियामेंट के चैप्टर में भी पढ़ा था, सॉरी प्रेसिडेंट के चैप्टर में भी पढ़ा था, बाकी सब रूल्स में लिखा गया है कि कैसे टाइम डिस्कशन क्या होगा, उसे वहां पे लिखा गया है। प्रोविजन शैल बी मेड बाय द रूल्स रेगुलेटिंग द प्रोसीड्यूर ऑफ द हाउस और ईदर हाउस ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ टाइम फॉर डिस्कशन ऑफ मैटर्स रेफर्ड टू इन सच एड्रेस। तो उस एड्रेस पे बात क्या होगी, हाउ द प्रोसीड्यूर विल गो ऑन, ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन मेंशन्ड इन रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर ऑफ दैट हाउस। सेम चीज जो हमने प्रेसिडेंट के चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। ओके, नाउ कॉमन थिंग्स, सेम चीज है। राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल एज रिस्पेक्ट द हाउस। तो एडवोकेट जनरल का क्या राइट है, मिनिस्टर्स का क्या है। तो एवरी मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट शैल हैव द राइट टू स्पीक। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट ऑलरेडी हमने पिछले क्लास में कवर कर लिया था। एवरी मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल शैल हैव राइट टू स्पीक, टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स, ठीक है। असेंबली में भी हो सकता है, काउंसिल में भी हो सकता है, और टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी कमिटी में भी हो सकता है, ठीक है। ऑफ विच ही मे बी नेम्ड अ मेंबर, बट वोट नहीं कर सकते वहां पे, ठीक है। कमिटी में अगर वो नहीं, तो वोट नहीं कर सकते अगर वो मेंबर नहीं है। इट्स वेरी कॉमन थिंग, एवरीवन नोज इट, ओके।
नेक्स्ट, नाउ द ऑफिस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, सेम चीज है यहाँ पे भी जैसा हम वहां पे पढ़े थे। स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। एवरी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट शैल एज सुन एज मे बी, मतलब यहाँ पे टाइम नहीं है, वो 15 डेज डाल सकते हैं, 30 डेज डाल सकते हैं, और बोलेंगे कि एज सुन एज द गवर्नर सेज, और गवर्नर कोई टाइम देगा या पिछला स्पीकर कोई टाइम देगा। दे कैन पुट एन नंबर ऑफ थिंग्स टू कंफ्यूज, बट द रियलिटी इज एवरी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट शैल, मतलब मैंडेटरी है उनके लिए, टाइम नहीं है तो मैंडेटरी है, नो टाइम लिमिट है, ठीक है। शैल एज सुन एज मे बी चूज करेंगे 2 members of the assembly to be respectively called as speaker and deputy speaker thereof as soon as possible, जितने जल्दी हो सके, and so often as the office of the speaker or deputy speaker becomes vacant, जब वो vacant हो जाएगा, again the assembly shall choose another member to be speaker or deputy speaker as the case may be। तो असेंबली हो गया पहले स्टेट, जितना जल्दी हो सके 2 मेंबर चूज करेंगे, एक है स्पीकर और एक है डिप्यूटी स्पीकर। अगर दोनों का स्पीकर वैकेंट, ऑफिस वैकेंट है, तो अगेन अनदर मेंबर टू बी स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर एज द केस में भी, और वैकेंसी और एब्सेंस के बारे में आगे भी है, ओके। So the legislative assembly is presided over by the speaker, who is elected by the members of the assembly from its own members. The assembly elects its deputy speaker also from its own members. The deputy speaker performs the duties of the speaker when the speaker is absent, okay, or while the office of the speaker is vacant, ठीक है। Obviously when the speaker का जो ऑफिस है वो वैकेंट है तो डिप्यूटी स्पीकर करेगा काम, लेकिन जब ऑफिस ऑफ डिप्यूटी स्पीकर इज ऑल्सो वैकेंट तो क्या है, सपोज मान लो डिप्यूटी स्पीकर का भी ऑफिस जो है वैकेंट है, so if the office of the deputy speaker is also vacant, the duties of the office of the speaker are performed by such member of the assembly as may be determined by the rules of procedure of that assembly। तो एक एक करके, अगर डिप्यूटी स्पीकर का भी ऑफिस वैकेंट है तो क्या होगा, कौन करेगा, स्पीकर है, स्पीकर वैकेंट, डिप्यूटी स्पीकर ऑल्सो वैकेंट, तो इट विल बी परफॉर्म्ड बाय सच मेंबर, उसी असेंबली का डिटरमिन कौन करेगा, आज डिटरमिन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द असेंबली, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लिखा गया है कैसे करना है। एंड इफ नो सच पर्सन इज प्रेजेंट देन सच अदर पर्सन मे बी डिटरमिन्ड बाय द असेंबली इन आर्टिकल 180, जो कि अभी पढ़ेंगे आफ्टर 179। अगर वो पर्सन भी नहीं है देन इट विल बी डन बाय आर्टिकल 180 में मेंशन्ड है, ओके ओके, विल कम टू दैट 180 नाउ, but before that we'll cover 179, vacation, resignation, ठीक है, removal। A member holding office of speaker or deputy speaker of an assembly shall vacate his office if he ceases to be a member of the assembly, ठीक है। May at any time by writing under his hand addressed, किसको एड्रेस करेगा, डिप्यूटी स्पीकर को एड्रेस करेगा, addressed to the deputy speaker, अगर he is a speaker then he has to address to the deputy speaker in writing, and if such member is the deputy speaker, अगर deputy speaker अगर मतलब wants to resign he has to do it to the speaker, vice versa, ठीक है। और क्या, may be removed from his office by resolution of the assembly passed by majority of all the then members, जितना available है majority, ठीक है। लेकिन ये सब, ये resolution has to be moved and it has to be given a 14 days notice, 14 days notice हर जगह रहता है, okay। Provided further that whenever the assembly is dissolved, the speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the assembly after the dissolution, ठीक है। Now coming to the main important part, that is 180, which is a continuation of article 178। यहाँ पे 2 things you have to remember, सेम चीज है डिप्यूटी स्पीकर के लिए, सेम चीज है सेम चीज है असेंबली के लिए, सेम चीज इज ऑल्सो फॉर काउंसिल के लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल। नाउ हियर द पावर ऑफ डिप्यूटी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज। तो डिप्यूटी स्पीकर का काम कब आता है, जब स्पीकर की ऑफिस वैकेंट होती है, सो व्हेन द ऑफिस ऑफ ए स्पीकर इज वैकेंट, सो 2 things you have to, one is vacancy
One is absence. Two things you have to remember. One is vacancy, one clause, and this clause is absence. So we have to clearly see question में vacancy लिखा है या absence लिखा है. Difference वहीं पे है. When the office of speaker is vacant, the duty shall be performed by deputy speaker. Okay, till here we know. Or now if the deputy speaker office is also vacant, by such member of the assembly as the governor may appoint for the purpose, but it comes after 178. First, if deputy speaker is vacant, it will go to rules of procedure. As per the rules of procedure, if that person is vacant, then it will be done by governor. Here governor rule comes. Clear? Okay. Now, when the speaker is absent or absence, during the absence of the speaker from any of the sitting of the assembly, or if the deputy speaker is there, or if he is also absent, okay, such person as may be determined by the rules of procedure of the house, or if no such person is present, then the other person by the assembly. Here assembly will decide, not the governor. तो absence में आप rules of procedure, फिर assembly. ठीक है. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर वैकेंसी में गवर्नर. एक याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक याद रह जाएगा. वन यू रिमेंबर वैकेंसी गवर्नर. वैकेंसी है डिप्टी स्पीकर भी, अगर वो भी नहीं है देन गवर्नर. दैट्स इट. आई गेस दिस ईयर एक क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग दिस वैकेंसी और समथिंग, कुछ एक क्वेश्चन आया था. कंफ्यूजिंग है तो अभी क्लैरिटी हो जाएगा. क्लॉज के साथ अगर पढ़ोगे तो क्लैरिटी मिल जाती है. ओके ओके. नाउ 181. और ये सेम चीज सेम चीज आपका इनके लिए भी है. ये असेंबली के लिए है, सेम चीज काउंसिल के लिए भी है. रिमेंबर सेम चीज, कोई डिफरेंस नहीं है. विल कम टू दैट लेटर. ओके. नाउ कमिंग टू 181. क्लैरिटी हो गया, यहां तक क्लैरिटी हो गया. ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 180 इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस साल भी क्वेश्चन आया, हमेशा क्वेश्चन आएगा. इट विल कंफ्यूज यू. आप जितना बार भी लक्ष्मीकांत पढ़ लो, एग्जाम पे गलती होने का चांसेस ज्यादा है, अनलेस एंड अनटिल यू डू इट फ्रॉम हियर. ठीक है. ओके 181. अब सेम चीज है. अभी यहाँ पे वोटिंग का बात है. अभी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड वाइल ए रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल इज गोइंग ऑन. जब उनके बारे में एक रिजोल्यूशन चल रहा है तो वो प्रिसाइड नहीं करेंगे. दैट इज ओके, डन. वो प्रिसाइड नहीं करेंगे, नॉट टू प्रिसाइड. ठीक है. तो ये वही चीज लिखा है, प्रिसाइड नहीं करेंगे. दो प्रेजेंट हो सकते हैं, दो ही कैन कम, ही इज प्रेजेंट बट नॉट प्रिसाइड. ठीक है, नॉट प्रिसाइड. और ये जो प्रोविजन 2 है ऑफ आर्टिकल 180, ऑब्वियसली जब वो प्रिसाइड नहीं कर रहा है मतलब वो एब्सेंट है ना. जब ही इज नॉट प्रिसाइडिंग, यू कैन नॉट से इट इज वैकेंट. यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन इट. प्रिसाइड उस स्पीकर का रिजोल्यूशन रिमूवल का चल रहा है, इट डज नॉट मीन द सीट इज वैकेंट. आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली. दे कैन लिंक एंड पुट इट इन अ स्टेटमेंट फॉर्मेट. गलती हो जाएगी प्रीलिम्स में. ठीक है. तो यहां पे वैकेंट का सिस्टम है ही नहीं, यहां पे एब्सेंस का सिस्टम है. एब्सेंट, सीट से एब्सेंट है. जब एब्सेंट का सिस्टम है तो क्लॉज 2 आएगा, बिकॉज क्लॉज 1 इज वैकेंट. अभी पढ़ा हमने. तो ये चलेगा. ठीक है. क्योंकि प्रिसाइड नहीं कर सकते, बिकॉज उनके बारे में कंसिडरेशन चल रहा है, रिमूवल का चल रहा है. तो द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 180, दिस थिंग शैल अप्लाई. यस, इट विल अप्लाई. इट विल अप्लाई जब वो एब्सेंट है. सपोज स्पीकर का, अभी और एक बार बोल देता हूं, स्पीकर का कंसिडरेशन चल रहा है रिमूवल का, पहले कौन आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डिप्यूटी स्पीकर आएंगे. ठीक है. नाउ डिप्यूटी स्पीकर अगर नहीं है तो ये केस किसका है? ये एब्सेंस का केस है, ये वैकेंसी का केस है ही नहीं. राइट. सो डिप्यूटी स्पीकर अगर नहीं है तो कौन आएगा? पहले रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर, आर्टिकल 178 हमने अभी पढ़ा 10 मिनट पहले. रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर में जैसे मेंशन है वैसा होगा. अगर वो पर्सन भी नहीं है, अगर रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर में जैसा है वो पर्सन भी अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा?
तो असेंबली चूज करेगी. सो असेंबली चूज मे बी डिटरमिन सच अदर पर्सन एज डिटरमिन्ड बाय द असेंबली. पहले रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर वो भी नहीं है, एंड इफ नो सच पर्सन इज प्रेजेंट तो असेंबली रूल करेगा, डिसाइड करेगा. क्लियर? कोई चीज लिख रहा है. ओके ठीक है. तो फ्रेम योर ओन क्वेश्चन. अपने जो लैंग्वेज है मदर टंग में इसको विजुअलाइज कर लो, याद हो जाएगा, पूरा ओवरऑल याद हो जाएगा और कहीं पे और देखने की जरूरत नहीं है. दिस इज द फाइनल स्टेटमेंट. कहीं पे लिख दीजिए ताकि क्लैरिटी हो जाए कि क्वेश्चन 100% आज नहीं तो कल आएगा. ओके फाइन. तो ये हो गया. जब उनके रिमूवल का रिजोल्यूशन चल रहा है तो प्रेसिडेंट कौन बनेगा, प्रिसाइड कौन करेगा. राइट नाउ क्लॉज नंबर 2 पे आ जाओ. द स्पीकर, अभी उनका रिजोल्यूशन चल रहा है, ठीक है, उनका रिमूवल का चल रहा है, तो प्रिसाइड का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. नाउ कमिंग टू वो क्या कर सकते हैं. प्रिसाइड तो नहीं कर सकते, इट इज डन. अब क्या कर सकते हैं. वही स्पीकर जब रिमूवल चल रहा है, राइट टू स्पीक अदरवाइज टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली वाइल एनी रिजोल्यूशन ऑफ द रिमूवल चल रहा है, वो टेक पार्ट, प्रोसीडिंग में टेक पार्ट ऑब्वियसली करेंगे. राइट लेकिन एंड शैल नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 189, आगे पढ़ेंगे इन 5 मिनट्स. आर्टिकल 189 इज रिलेटेड टू स्पीकर का, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर का, वो वोट कब करेंगे, कब वोट करेंगे. तो उसको छोड़ के हियर अगर उनका रिमूवल चल रहा है, यू विल बी एंटाइटल्ड टू वोट ओनली in the first instance on such resolution or any other matter during such proceedings, but not in the case of equality of votes. क्योंकि here हमने बात किया, he can take part in proceedings, right? He can take part. He simply cannot preside, but he can take part. So while any resolution for his removal of चल रहा है, तो उनका resolution के लिए रिमूवल भी तो वोटिंग वगैरह होगी ना, तो वहां पे फर्स्ट इंस्टेंस में वो वोट करेंगे, ठीक है. बट इक्वलिटी अगर हो गया, वोट इक्वल आ गया, तो वोट नहीं करेंगे. लेकिन नॉर्मल टाइम पे स्पीकर का काम ऑपोजिट है. फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं करेंगे लेकिन इक्वलिटी में करेंगे. बट एट दैट पॉइंट रिमूवल का कंसिडरेशन नहीं चल रहा. दैट इज ए नॉर्मल सर्कमस्टेंस. दैट इज आर्टिकल 189 में पढ़ेंगे हम अभी. बट जब रिमूवल का चल रहा है, इट इज 181 इज स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट रिमूवल. जब रिमूवल चल रहा है तो ही इज नाउ ए नॉर्मल पर्सन. आप ऐसे याद कर सकते हो, ही इज नाउ ए नॉर्मल मेंबर. ही विल ओनली वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस. जब वो रिजोल्यूशन चलेगा, उसी रिजोल्यूशन की बात हो रही है, रिमूवल की रिजोल्यूशन ही बात हो रही है. विथ वाइल एनी रिजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल. आप इसमें और कोई रिजोल्यूशन मत डाल देना, गलत हो जाएगा. दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट रिमूवल, ठीक है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ये रिमूवल की रिजोल्यूशन की ही बात हो रही है, कुछ और रिजोल्यूशन या फिर कुछ और बिल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. दिस आर्टिकल स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट इट. सो उसी रिजोल्यूशन पे आप एक बार फर्स्ट इंस्टेंस में यू कैन वोट, बट नॉट इन केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स. क्लियर? ठीक है. ओके नाउ कमिंग टू आर्टिकल 182. अभी आ जाएंगे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में. सेम चीज है, ठीक है. द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ एवरी स्टेट का एक काउंसिल होगा. एज सुन एज मे बी, अगेन वही चीज है, एज सुन एज. यहां पे टाइम लिमिट है, नो टाइम लिमिट. सेम चीज, दो चीज है. मैंडेटरी है लेकिन टाइम लिमिट नहीं है. शैल मैंडेटरी है लेकिन टाइम लिमिट नहीं है. सो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ एवरी स्टेट शैल मैंडेटरी एज सुन एज मे बी. दो मेंबर चूज करेंगे काउंसिल से, जो कि एक चेयरमैन होगा, एक डिप्टी चेयरमैन होगा, ठीक है. एंड सो ऑफन एज द ऑफिस ऑफ चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बिकम्स वैकेंट, जब वैकेंट हो जाएगी, ठीक है, काउंसिल अनदर चूज करेगा मेंबर, ठीक है. ओके सेम चीज है जो अभी हमने पढ़ा. नाउ वैकेंट हो, रेजिग्नेशन हो, कैसे सेम चीज यहां पे भी सेम चीज है. मेंबर होल्डिंग ऑफिस, मेंबर होल्डिंग ऑफिस एज चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन कैसे वैकेट करेगा.
अगर वो मेंबर काउंसिल का मेंबर ही सीज हो गया तो ऑब्वियसली ही हैज टू वैकेट, राइट, वेरी कॉमन। मे एट एनी टाइम अंडर बाय राइटिंग में वो डेप्यूटी चेयरमैन को दे सकता है। अगर वो चेयरमैन है तो ही कैन गिव इन राइटिंग टू डेप्यूटी चेयरमैन। अगर वो डेप्यूटी चेयरमैन है, वो रिजाइन करना चाहते हैं, तो ही हैज टू गिव इन राइटिंग टू द चेयरमैन। वाइस वर्सा, सेम चीज, सेम थिंग लाइक अ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इन legislative assembly, same thing। थर्ड भी वही है, may be removed from his office by a resolution of the council, by the council, उसी house का, passed by a majority of all the then members of the council, very common। provided that no resolution shall be moved unless 14 days notice, same चीज, पूरे exactly डिक्टो है इन दोनों का, डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, पूरे वर्ड टू वर्ड सेम है। ओके फाइन। फिर आ जाते हैं वैकेंसी पे और एब्सेंस पे, सेम चीज अगेन, और एक बार बोल देता हूँ, सेम चीज है, उनका जैसा इनका भी वैसा है। वाइल द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन इज वैकेंट, और एक बार तो फर्स्ट वन इज वैकेंसी, आपको याद करना। वैकेंसी में कौन आता है, अभी बोला गवर्नर आएगा एंड में, ठीक है। एब्सेंस में कौन आता है, एब्सेंस में फाइनली वही हाउस आएगा, वहां पे असेंबली था, यहाँ पे काउंसिल है। सिंपल, आपको एक याद करना है, वन यू रिमेंबर द अदर ऑटोमेटिकली। आपको एब्सेंस के साथ क्या है, वैकेंसी के साथ क्या है। सो व्हेन द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन इज वैकेंट, द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस शैल बी परफॉर्म्ड बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेप्यूटी चेयरमैन आएगा, ठीक है। इफ डेप्यूटी चेयरमैन का ऑफिस भी वैकेंट है तो बाय सच मेंबर ऑफ द काउंसिल एज द गवर्नर में अपॉइंट, तो वैकेंसी में हमेशा फाइनली गवर्नर के पास पावर होता है, वो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। नाउ इफ एब्सेंट की बात आती है, जब वो एब्सेंट है, वैकेंट नहीं है, जब देखो वैकेंसी कैसे आती है, तब तो रिजाइन करते हो या फिर आप टेन्योर खत्म हो जाता है, वैकेंसी वहां पे आती है। एब्सेंट मतलब फॉर सम रीजन यू आर एब्सेंट टुडे। अगर आपका रिमूवल का चल रहा है रिजोल्यूशन, अभी हमने डिस्कस किया रिमूवल, रिजोल्यूशन ऑन रिमूवल चल रहा है, देन ऑल्सो योर सीट इज एब्सेंट नॉट वैकेंट, रिमेंबर, बिकॉज रिजोल्यूशन चल रहा है, पास हो सकता है, पास नहीं भी हो सकता है। अगर पास नहीं हो, यू विल बी अगेन कमिंग बैक टू दैट पोजीशन, सो इट इज नॉट वैकेंट, ठीक है। सो ड्यूरिंग वैकेंसी ऑफ द चेयरमैन फ्रॉम एनी सीटिंग ऑफ द काउंसिल, द डेप्यूटी चेयरमैन पहले तो आएगा। इफ ही इज ऑल्सो एब्सेंट, सच पर्सन रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर में जैसे मेंशन है वो आएगा। अगर वो नहीं है तो फाइनली काउंसिल करेगा। तो बीच में बस रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर में जो लिखा है वैसा आ सकता है, नहीं तो फाइनली काउंसिल डिसाइड करेगा, सेम चीज है, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू रिजोल्यूशन। अगर उनका रिमूवल का रिजोल्यूशन चल रहा है, अभी जैसे डिस्कस किया, ओके, तो रिमूवल का अगर चल रहा है तो प्रिसाइड कैसे होगा, और उनका क्या है, मतलब उनका क्या क्या प्रोविजन है उनके बारे में। द चेयरमैन और द डिप्यूटी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड वाइल ए रिजोल्यूशन फॉर इज रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन। तो एट एनी सिटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, while any resolution for the removal of the chairman is under consideration, the chairman, or while any resolution for the removal of the deputy chairman also is under consideration, so the deputy chairman shall not, though he is present, shall not preside। दोनों के अगेंस्ट में अगर चल रहा है, they can't preside, as simple as that। and provisions of, obviously जब उनके अगेंस्ट में रिमूवल रिजोल्यूशन चल रहा है, so that seat is now absence, right, it is absent, so the clause 2 will work here, this clause will work here, this clause similar to our speaker and deputy speaker, तो वैसा ही चलेगा। कोई तो प्रिसाइड करेगा ना, बिना प्रिसाइड में हाउस चलेगी कैसे, इट इज मैंडेटरी, प्रिसाइड तो करना ही पड़ेगा। सो जैसे रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर में लिखा है वैसा होगा। अगर वो भी पर्सन नहीं है तो काउंसिल डिसाइड करेगा। यहाँ पे गवर्नर नहीं आएगा तो रिमूवल ऑफ ऑफिस, दे विल कनेक्ट द स्टेटमेंट एंड मेक वन स्टेटमेंट। रिमूवल ऑफ द ऑफिस में कौन करेगा, या फिर दे विल मेक स्टेटमेंट रिमूवल ऑफ द ऑफिस। और जब नहीं तो दे पूछेंगे, दे कैन आस्क कि रिमूवल ऑफ ऑफिस जब कंसिडरेशन में चल रहा है तो कौन प्रिसाइड करेगा। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नर कांट बी द आंसर, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एब्सेंस हियर, ठीक है। फाइन, नेक्स्ट सेम चीज है, क्लॉज 2 भी, चेयरमैन शैल हैव द राइट टू स्पीक, राइट टू टेक पार्ट, रिजोल्यूशन, उनका रिमूवल रिजोल्यूशन में भी वो वोट कर सकते हैं, बट ओनली एट द फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है।
नॉट इन द इक्वलिटी ऑफ वोट्स, इक्वलिटी ऑफ वोट्स में नहीं कर सकते, बट नॉर्मल केस में उल्टा होता है इसका, इक्वलिटी ऑफ वोट्स में ही वो करेंगे, नॉर्मल इंस्टेंस में नहीं करेंगे। वो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 188 पे, ओके 189 पे। ओके, नाउ सैलरीज अलाउंसेस, दीज आर कॉमन थिंग्स। Salaries and allowances of the speaker and deputy speaker or chairman or deputy speaker, they shall be paid to the speaker and deputy speaker and chairman। और ये सब कैसे होगा, कौन फिक्स करता है? सिंपल, जस्ट रिमेंबर, सिंपल फिक्स कौन करता है? लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट बाय लॉ। यहाँ पे पार्लियामेंट नहीं है। जब तक लेजिस्लेचर बाय स्टेट नहीं करता है तब तक ये कैसे चलेगा? जैसे सेकंड शेड्यूल पे लिखा है, वेरी कॉमन, ये सब चीज हमने पार्लियामेंट में भी पढ़ा था। जब तक वहां पे पार्लियामेंट नहीं करता है तब तक सेकंड शेड्यूल तक चलेगा। ओब्वियसली 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन जब आया, इमीडिएटली तो कोई लॉ पास करके इनको सैलरीज नहीं दे सकता ना, इट टुक टाइम फॉर ए लॉ। तब तक सेकंड शेड्यूल पे चल रहा था, अब लॉ पे चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 187, जैसे कि पार्लियामेंट में सेक्रेटेरिएट रहता है, हमने पढ़ा था, सिमिलरली यहाँ पे भी सेक्रेटेरियल स्टाफ रहेगा, सेक्रेटेरिएट रहेगा, ओके। द हाउस और ईच हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर स्टेट शैल हैव ए सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ, ठीक है, प्रोवाइडेड नथिंग इन दिस क्लॉज शैल इन द केस ऑफ लेजिस्लेचर स्टेट हैविंग ए काउंसिल बी कंस्टिट्यूट एज प्रिवेंटिंग द क्रिएशन ऑफ पोस्ट कॉमन टू बोथ हाउसेस और सच लेजिस्लेचर। मतलब सेक्रेटेरियल स्टाफ और पोस्ट हो सकता है बहुत सारे बहुत सारे, जैसे कि जो एग्जाम है एसएससी का एग्जाम है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वहां पे बहुत सारे पोस्ट यहीं पे आते हैं, ओके। सो यहाँ पे लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में बाई लॉ, वहां पे पार्लियामेंट में बाई लॉ रेगुलेट कर सकता है, यहाँ पे ऑब्वियसली स्टेट रेगुलेट करेगा। कोई भी मतलब रिक्रूटमेंट हो गया या फिर कंडीशन ऑफ सर्विस होना चाहिए टू द सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ द हाउस, तो वहां पे लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट करेगा। लेकिन पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा का जो सेक्रेटेरिएट होता है वहां पे पार्लियामेंट रेगुलेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अंटिल प्रोविजन इज मेड बाय द लेजिस्लेचर स्टेट अंडर क्लॉज 2, जब तक स्टेट लॉ नहीं बनाता है, ठीक है, अंटिल द प्रोविजन इज मेड, दिस वन क्लॉज 2, तब तक क्या होगा? लेकिन स्टाफ तो होना चाहिए। सो वहां पे गवर्नर, ठीक है, may after consultation with the speaker of the legislative assembly or the chairman of the legislative council as the case may be make rules regulating वही रिक्रूटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस, वो रिक्रूट कर सकता है। जब तक लॉ पे नहीं है तब तक गवर्नर कर सकता है, क्लियर, ओके। नाउ कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ मेंबर्स, कॉमन है ये। यहाँ पे एवरी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल शैल मतलब मैंडेटरी, नॉट आफ्टर बिफोर टेकिंग हिज सीट, बिफोर की जगह आफ्टर कर देगा, आपका पूरा स्टेटमेंट का मतलब ही चेंज हो जाता है। सीट लेने से पहले मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर द गवर्नर और सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय द गवर्नर, गवर्नर हो सकता है, गवर्नर के अलावा कोई और भी हो सकता है, एनी पर्सन अपॉइंटेड, इट कैन बी एनी सम पर्सन, तो गवर्नर के ऊपर है, ठीक है। तो ओथ और अफर्मेशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट इन द थर्ड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल में ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में लिखा है, तो एज पर दैट दे हैव टू डू इट, ठीक है। नाउ कमिंग टू द रियल वोटिंग, वी talked about the voting when the resolution of removal is going on. Now the real normal voting in houses जो होती है उनका क्या है? बस आपको एक चीज याद करना, उसका उल्टा है, जो कि वहां पे इक्वालिटी पे नहीं कर सकते, यहाँ पे वो कास्टिंग वोट कर सकते हैं, इक्वालिटी पे फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं कर सकते, ठीक है। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द स्पीकर, दिस लाइन यू हैव टू रिमेंबर, द स्पीकर और द चेयरमैन और द पर्सन एक्टिंग एज सच, कोई भी मतलब स्पीकर है, चेयरमैन है, या फिर उनके जगह कोई और भी अगर है, they shall not vote in the first instance but shall have and exercise a casting vote। shall मतलब अगर इक्वलिटी ऑफ वोट्स आ रही है, इट इज मैंडेटरी फॉर द स्पीकर टू वोट। आप वहां पे वो नहीं बोल सकते कि आई विल नॉट डू, पॉकेट वेटो नहीं डाल सकते वहां पे, यू हैव टू वोट, यू हैव टू वोट, बट इन केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स, सो दैट इज अदरवाइज कॉल्ड एज द कास्टिंग वोट, ठीक है।
ओके, आर्टिकल 108 में इतना ही जरूरी है। ओके, ये क्लॉज थोड़ा एक बार देख लो। 3 and 4 2 इज नॉट रिक्वायर्ड, वेरी कॉमन चीज है, सबको पता ही है। ओके, अंटिल द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ध्यान से पढ़ो। आज मैंने जो फाइनल क्वेश्चन बनाया था, अभी देख सकते हो मेरे चैनल पे, यहीं से बनाया था दैट क्वेश्चन। ओके, ट्रिकी क्वेश्चन था, इसी 2 क्लॉज से ही बनाया था। ओके, until the legislature of the state by law otherwise provides quorum to constitute a meeting of a house shall be 10 members। हम सबको पता है quorum 10 members है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन quorum बढ़ भी सकता है। एग्जैक्ट सेम चीज वी हैव आल्सो स्टडीड इन पार्लियामेंट चैप्टर। सेम इसी ऐसे वीडियो पे मैंने बोला था कि quorum जितना भी है, quorum को रेगुलेट किया जा सकता है, इट कैन बी रेगुलेटेड। सेम चीज हियर, द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कैन रेगुलेट द quorum until the legislature by law provides quorum 10 रहेगा और 1/10 रहेगा of the total member of the house whichever is greater। तो पता क्या चलता है, yes the state legislature can regulate the quorum, who said they can't? Problem is when you study the book, वहां पे लिखा है quorum is 10 और quorum is this, तो हमको ऐसा लग रहा है कि quorum उतना ही और कुछ बढ़ नहीं सकता, कम नहीं हो सकता है। अब हुआ नहीं है वो अलग बात है, लेकिन हो सकता है, क्लियर कट लिखा है क्लॉज 3 पे। नाउ if at any time during the meeting of a legislative assembly or a council there is no quorum, अगर कोई quorum नहीं है, ठीक है, so it shall be the duty of the speaker or the chairman or any person acting, adjourn भी कर सकता है, suspend भी कर सकता है। जो क्वेश्चन मैंने आज पुट किया था, मैंने क्या बोला था, when there is no quorum they can only adjourn but can't suspend। it looks relatable, हाँ adjourn हो सकता है, suspend कैसे कर सकते हैं, quorum नहीं है। दोनों कर सकता है, उसके पावर है either और, एडजन भी कर सकता है, सस्पेंड भी कर सकता है, अंटिल देयर इज ए कोरम। ठीक है, फाइन, क्लियर होगा, यहां तक क्लियर होगा सबका? ओके, नाउ कमिंग टू 190 वैकेशन ऑफ सीट्स, डिस्क्वालिफिकेशन। नाउ यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की बात आई गई। ओके, डिस्क्वालीफाई कैसे होगा? नो पर्सन शैल बी ए मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों हाउस का तो एक आदमी मेंबर हो ही नहीं सकता। एंड प्रोविजन शैल बी मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द हाउस स्टेट बाय लॉ फॉर द वैकेशन ऑफ ए पर्सन हु इज चूजन अ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ हिज सीट इन वन हाउस और द अदर। और प्रोविजन लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट बाय लॉ कर सकता है, लेकिन दोनों का एक साथ नहीं हो सकता, ये हम सबको पता है। बाकी उसी चीज रिलेटेड क्लॉज 2 में लिखा है। Okay, no person shall be member of the legislature of 2 or more states specified in the first schedule, and if a person chooses a member of the legislature of 2 or more such states, दोनों का देखो, no person shall be a member of the legislature of 2 or more states, दो अलग अलग states की बात हो रही है यहाँ पे। And if a person is chosen a member of legislature of 2 or more such states, then at the expiration of such period as may be specified in rules made by the president, that person's seat in the legislature of all such states shall become vacant unless he has previously resigned his seat in the legislature of all but one of the states. Now, if a member of a house of a state legislature becomes subject to any of the disqualification mentioned in clause 1, this one, or clause 2, this one, if a member of a house of a state legislature becomes subject to any of the, ठीक है, his seat shall become vacant। ठीक है, ये हो गया एक। Now again, if a member of the house of a legislature of a state resigns his seat by writing under his hand addressed to the speaker or the chairman as the case may be, and his resignation is accepted by the speaker or chairman as the case may be, his seat shall be vacant। this is normal thing। तो यहां पे कोई भी मेंबर ऑफ द हाउस अगर वो रिजाइन करता है बाय राइटिंग भी रिजाइन हो सकता है, वो वैकेंसी हो जाएगी, वो एब्सेंसी में नहीं होगा, ऑब्वियसली इट विल बी वैकेंट बिकॉज रेजिग्नेशन लीड्स टू वैकेंसी, रेजिग्नेशन डज नॉट लीड टू एब्सेंटी, राइट? ओके, और एक चीज भी आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, स्पीकर और चेयरमैन का जो पावर है, प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ एनी रेजिग्नेशन रेफर्ड टू इन द सब क्लॉज बी, यहाँ पे जब आप लिख के दे रहे हो, आप व्हेन यू आर राइटिंग इन बाय राइटिंग यू आर गिविंग
to the chairman or the speaker कि you want to resign if from information received or otherwise, and after making such inquiry, if he thinks fit, अगर स्पीकर इंक्वायरी किया और उसको कुछ इंफॉर्मेशन पता चला, as the case may be, and he is satisfied that such resignation is not voluntary or genuine, he will not. So he has another power also. Accept नहीं कर सकता, he will not accept your resignation. So it is not absolute कि if he does, then the man, if you are a member and you want to resign by writing to the speaker, the speaker and has a alternative. He may not accept your resignation if he is satisfied that your resignation is not voluntary, genuine नहीं है, कोई जबरदस्ती या फिर कोई एक दबाव में आके आप कर रहे हो. So it is not always correct. ठीक है, प्रीलिम्स के फॉर्मेट में मैं स्टेटमेंट बना रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए. ओके फाइन. और एक क्या है, अगर आप बहुत दिन से ज़्यादा 60 डेज से ज़्यादा आप नहीं आ रहे हो तो ऑब्वियसली आपका सीट वैकेंट हो जाएगा. इफ फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ ए लेजिस्लेचर ऑफ इज विदाउट द परमिशन एब्सेंट, मतलब आप एब्सेंट हो रहे हो विदाउट द परमिशन, तो यहाँ पे प्रोविजन है आप परमिशन लेके कर सकते हो, बट विदाउट द परमिशन आप एब्सेंट हो रहे हो, सो दैट सीट विल बी वैकेंट, दैट एमपी सीट, दैट एमएलए सीट विल बी वैकेंट. ठीक है, ओके नेक्स्ट. तो 60 days you have to remember, but परमिशन लेके करना पड़ेगा. सो यू इट कैन बी मोर देन 60 days, बट द थिंग इज इफ आर टेकिंग परमिशन एंड द हाउस ग्रांट्स यू, और one more thing, permission of the house. ठीक है, परमिशन ऑफ द हाउस, तो वो लेना, यहाँ पे स्पीकर नहीं है. ओके provided that in computing the said 60 days no account shall be taken of any period during which the house is prorogued or adjourned. सेम चीज ये 60 डेज पार्लियामेंट में भी था यहाँ पे, लेकिन अगर हाउस प्रोरोग हुआ है और अर्जन हुआ है तो वहां पे वो काउंट नहीं होगा फॉर मोर देन 4 consecutive days. ओके नाउ कमिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स. ठीक है, पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सेम चीज जो हमने पार्लियामेंट में पढ़ा था, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रखता है, अनसाउंड माइंड. ठीक है, और अगर वो डिक्लेयर किया गया है, कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको डिक्लेयर किया है कि अनसाउंड ऑफ माइंड है. अगर यू आर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, आप अगर लोन्स ले रहे हो आप वापस नहीं दे सकते, यू आर इंसॉल्वेंट. ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड हमने पढ़ा है इकोनॉमी में. ठीक है, इंसॉल्वेंसी पहले होता है फिर बैंकरप्ट होते हैं. बैंकरप्ट मीन्स यू डिक्लेयर कि यू कांट गिव, इंसॉल्वेंट मीन्स यू आर नॉट एबल टू गिव. बैंकरप्ट मतलब आप फुल्ली फाइनली डिक्लेयर करते हो ऑफिशियली लीगली कि आई एम बैंकरप्ट, आई कांट डू एनीथिंग. ओके, सो इंसॉल्वेंसी एक पहला स्टेज होता है, फिर वो बैंकरप्सी पे लीड करता है. एंड इफ ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और हैज वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप of a foreign state or is under any acknowledgement of allegiance or adherence to a foreign state, you are acknowledging कि I am not from here, I am adhering to a foreign state, then also you are not disqualified, or any law made by the parliament. ठीक है, ओके नेक्स्ट. तो 191 को और एक बार, एनी लॉ मतलब आरपीए 1951 में भी अभी हमने पढ़ा 19 आर्टिकल 119, दीज आर द थिंग्स, एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हैज मेड अ लॉ 1951, जहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन, करप्ट प्रैक्टिसेस करोगे तो डिस्क्वालिफिकेशन होगा. ठीक है, कन्विक्शन बाय ए कोर्ट, कोर्ट अगर देगा कन्विक्ट कर रहा है आपको. इन इलेक्शन बीइंग डायरेक्टर इन अ कॉर्पोरेशन व्हिच द गवर्नमेंट हैज अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट. सो दिस इज आरपीए. सो आरपीए एक्ट इज अ सेपरेट टॉपिक. यहाँ पे थोड़ा बहुत कनेक्शन तो आएगा, बट इट्स अ सेपरेट टॉपिक, यू हैव टू कवर इट. आरपीए एक्ट ऑफ 1950 and RPA Act of 1951, which I will cover after covering all these articles. I will cover each and every provisions of that which are relevant, obviously which are relevant for prelims. Okay. Clause 2 declares that a person shall be disqualified from being a member of the assembly if he so declared under 10th schedule. Clause 2 क्या है, 10th schedule में भी है, एंटी डिफेक्शन, वही चीज लिखा है. A person shall be disqualified for being a member legislative
इफ ही सो डिस्क्राइब अंडर 10 शेड्यूल अलग से भी आया है अमेंडमेंट करके 1985 से, ठीक है। Okay, now important. Okay, the final last two articles. Decision on questions as to disqualification of members. कोई भी डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो वो जो कुछ क्वेश्चन अगर आएगा उसमें, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस एज टू वेदर द मेंबर ऑफ हाउस जो भी डिस्क्वालीफाई हुआ है, तो उसमें कुछ अगर क्वेश्चन आया है, द क्वेश्चन शैल बी रेफर टू द डिसीजन ऑफ द गवर्नर, और उसका डिसीजन विल बी फाइनल। लेकिन गवर्नर अपने डिसीजन लेने से पहले मैंडेटरी, इट इज मैंडेटरी, तो फाइनल डिसीजन तो उनका है, लेकिन जो एडवाइस लेगा या फिर ओपिनियन लेगा, इट इज मैंडेटरी टू टेक द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सेम चीज पार्लियामेंट में भी है, सेम चीज स्टेट में भी है। यहाँ पे आप स्टेट इलेक्शन कमीशन मत लिखना, यहाँ पे है गवर्नर विल टेक द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन, वहां पे प्रेसिडेंट विल टेक मैंडेटरी, अगेन मैंडेटरी विल टेक द ओपिनियन ऑफ अगेन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सेम चीज है। एंड शैल एक्ट, अगेन मैंडेटरी, हमने लास्ट ईयर जो एमसीक्यूज किए थे अगर किसी को याद है, इट इज मैंडेटरी। तो कहीं ना कहीं गवर्नर के ऊपर अगर दैट स्टेटमेंट क्या है, दैट इज बाइंडिंग। तो इलेक्शन कमीशन का जो ओपिनियन, इट इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नर। फाइनल तो उनका है, डिसीजन तो ऑब्वियसली डिसीजन इज फाइनल, बट इज बाइंडिंग, ठीक है, शैल लिखा है, ओके। तो यहां पे मुझे एक चीज बताओ, अगर थोड़ा क्वेश्चन को और ट्विस्ट करेंगे, तो यहाँ पे गवर्नर ले रहा है, यहाँ पे प्रेसिडेंट ले रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे चीजें है शैल। तो यहाँ पे क्या ये डिस्क्रिशनरी पावर कुछ है, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के कर सकता है? नो, बिकॉज इट इज शैल, हैज टू टेक, इट हैज टू टेक दैट डिसीजन। आप पूछो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, आप एडवाइस लो ना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। यू कैन टेक द एडेड एडवाइस, यू कैन नॉट टेक इट, ऑब्वियसली एज पर प्रोटोकॉल दे टेक इट, बट इट इज shall na, you have to take that decision, will be there, you can't change the decision, constitutional measure hai ye, you can't change, you have to go by the constitution, clear? ठीक है, 193 एग्जाम पे कभी नहीं आएगा, पेनल्टी होगा अगर आप ध्यान से, अगर आप कुछ मतलब हेर फेर किए हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा, कितना, 500 रुपये का, ठीक है, 500 रुपीज़ का पेनल्टी लगेगा। अगर आप कुछ मतलब सिटिंग और वोटिंग करते हो बिफोर मेकिंग ओथ, मतलब यू आर नॉट क्वालिफाइड, यू आर डिस्क्वालिफाइड, देन अगेन यू आर गोइंग एंड सिटिंग एंड डूइंग समथिंग, देन यू विल गेट अ पेनल्टी ऑफ 500 रुपीज़, ओके। नाउ कमिंग टू पावर प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस भी हमने पढ़ा था, वहाँ पे भी पढ़ा था पार्लियामेंट में, यहाँ पे भी पढ़ा है। नाउ 194 द पावर प्रिविलेजेस of the House of Legislation members and committee, सबका privileges रहते हैं, जहाँ पे हम parliamentary, the topic is parliamentary privileges, we have already covered in our parliament chapter. Parliamentary privileges is a potential mains question, prelims and potential mains question, any exam, state हो या UPSC हो, same चीज state legislature के लिए भी same चीज रहेगा। So subject to provisions of this constitution and the rules and standing orders regulating the procedure of the legislature, there shall be freedom of speech रहेगा, but again subject, so it means the freedom of speech is not absolute, subject to rules, yes there is a freedom of speech because they are our representatives, obviously they have to get some privileges because they are our representatives, we have chosen them, but yes, subject to provisions. No member of the legislative of a house shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in the legislature or any committee, and no person shall be so liable in respect of any publication by or under the authority of a house of such legislature of any report, paper, votes or proceedings. मतलब कोर्ट पे, एनी कोर्ट पे कोई भी आप वोट दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, you are not liable to any proceedings in any court because of this all this, respect to any publication or any under any authority of a house, anything, reading any report, any paper, something, you are given, you are not liable to any proceedings. In other
respects the powers, privileges and immunities of a house. ठीक है, यहाँ पे मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, ध्यान से वर्ड, यहाँ पे मेंबर, एक मेंबर की प्रिविलेजेस की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्लॉज पे क्या हो रहा है, द पावर्स, द प्रिविलेजेस एंड द इम्यूनिटीज ऑफ ए हाउस ऑफ ए लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट एंड ऑफ द मेंबर्स एंड कमिटी, सबका, ऑफ सच लेजिस्लेचर शैल बी, ठीक है, शैल बी मतलब मैंडेटरी है, shall be such as may from time to time be defined by the legislature by law and until so defined, मतलब ये जो पावर वगैरह सब है इसको हम लॉ पे भी कोडिफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोडिफिकेशन हुआ नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। पार्लियामेंट में वही हम डिफरेंट कन्वेंशंस, थोड़ा यूके से चीज़ें, बाकी इधर उधर प्रोविजन से लेके, रूल से लेके हम कहीं ना कहीं मानते हैं, लेकिन एक साथ, क्योंकि इट इज़ वेरी डिबेटेबल। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जा रहा है, लेकिन आर्टिकल 19 भी आपको कहीं ना कहीं पूरा सब्जेक्ट एब्सोल्यूट पावर्स नहीं देता, कहीं पे भी एब्सोल्यूट चीज़ें नहीं है। सो इट हैज़ टू बी वेरी माइन्यूटली कोडिफाइड इन अ लॉ। द गवर्नमेंट हैज़ टू डू इट, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू डू इट फॉर देयर लेजिस्लेचर, द पार्लियामेंट हैज़ टू डू इट फॉर the parliamentarians or the ministers or the members, MPs. So tab tak until so defined shall be those of that house and of its members, committees, immediately before the coming into force of section 26 of the constitutional, that is 1978 act। मतलब वही चीज है, अभी तक डिफाइंड नहीं है, तो जब तक वेरियस चीजों से जैसे चलता आ रहा है वैसा चलेगा, तो इट इज अ वेरी डिबेटेबल थिंग, ठीक है। बट यस, दे हैव सम इम्यूनिटीज। The provisions of 1, 2, 3 shall apply in relation to persons who by virtue of this constitution have the right to speak। उन्हीं के लिए है जो कि right to speak कर सकते हैं, to take part in the proceedings कर सकते हैं of the legislative house और any committee में, ठीक है। तो उन्हीं के लिए ये power, privileges, the powers, privileges सब है वहाँ पे, ठीक है। ओके, सो इन नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विथ दिस। ये थोड़ा और है आर्टिकल्स जहाँ पे हाई कोर्ट्स भी आएगा, हाई कोर्ट इसी के साथ ही कवर हो जाएगा, एंड वी हैव सम मोर बिल्स, मनी बिल्स एंड ऑल दिस थिंग्स नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।